to each of you. Please, can you tell me, that day I was doing the class from some other's place and doing it on my telephone, so I couldn't see you all. Please introduce Bhuvanesh Bagora. Otherwise, what do you do? Yes, madam. Beside this, I'm doing sound engineering from Okay. Indore, Okay. and that's all I'm doing. Sound engineering. Oh, that is why you are interested in music, or music, you were interested early in music and then went for sound engineering. Madam, uh, I'm interested in playing guitar, and initially, and after that, I, I मुझे ऐसा लगा कि साउंड इंजीनियरिंग को सीखना बहुत ज़्यादा जरूरी है बिकॉज ऑफ रिकॉर्डिंग एंड ऑल दिस थिंग्स. Okay, from which place? You वैसे just तो मैडम told मैं me. झाबुआ में रहता हूँ, लेकिन यहाँ से पास में ही इंदौर है, तो इंदौर में Indore. ही सीख Okay. रहा हूँ. Okay. Okay. Balram Meena क्लास में है? या मैम, हाँ बताइए, आप बताइए. मैं दिल्ली से हूँ. आप दिल्ली से ही हैं. क्या कर रहे हैं इसके अलावा? इसके अलावा मैम बीए चल रही है. बीए चल रही है. ओके. काजल कौर. काजल कौर. ओके. पूनम आई नो. संगीत जौला. Ma'am, it's Sangeeta actually. It's Sangeeta. Okay. Yeah. So I'm pursuing PhD English from Ambedkar University. Oh, great. Ambedkar And University from Delhi. Delhi. Okay. Yeah, Kashmiri Gate. Okay. And other than that, I'm also learning from Gandhar Mahavidyalaya. This is just my second year. Okay. Yeah. But Gandharva is a very good place. Why are you coming to IGNOU for 6 months course? Because of the diploma maybe. And this is also, related, the theory part, which is different from Gandharva. Okay. So because we do mostly the practical one. So I thought that I must. And this also would help me in my PhD as well. There is little bit music involved there. So. Acha. What is the subject of your PhD? So I'm looking at the narratives, folk narratives of the community of potters all across India. And we know about Ghatam and Ghada, how it's being played in various, cultures. So I'm also looking at that. Just a little element of music is there. Otherwise, it's mostly folk narratives. Okay. Nice subject. Manoj, from which place you are? Manoj is not there. Nikhil Lekhra. हेलो मैम. Yes. हाँ मैम, मैं निखिल हूँ and I am from Rajasthan and currently I am doing MTech from IIT Delhi and I am interested in music, so I joined this course. That's all. Very nice. Very nice. Arav Raj. यस मैम. गुड इवनिंग मैम. मैम मैं राजस्थान से हूँ मैम. मैं भी जोधपुर से. मैं भी जेएनयू से बीकॉम कर रहा हूँ, मगर मेरा संगीत में बहुत ज़्यादा लगाव है, इसलिए मैं ये कोर्स कर रहा हूँ. Thank you. Monu Saw. मोनो. ओके. तो मैं सबसे पहले तो यही बता दूं कि हाँ, अपन जो इस म्यूजिक को एज अ सब्जेक्ट यहाँ पर देख रहे हैं, तो जो हमारा OVA 001 है, इसका जो दीक्षित कुमार is also here. Where is he? He's not here. Yes, ma'am. Thanks for giving me a chance. So my name is Dikshit Kumar,
Yeah. मैं सिंगापुर में बेस्ड हूँ कुछ सालों से, ऐसे मुंबई में रहा हूँ। जी मैं करीब 15 साल से नौकरी में हूँ जी एंड कोरियर और लॉजिस्टिक्स मेरा जो है फील्ड रहा है, लेकिन अच्छा संगीत में बहुत गहरी रुचि है और अपने स्तर पर, व्यक्तिगत स्तर पर कुछ कुछ सीखता रहा हूँ किसी वीडियो से, किसी गुरुजनों का कुछ पढ़ के। तो मुझे अब ये ख्याल है कि मुझे इस पैशन को थोड़ा स्ट्रक्चर करना चाहिए और सीखना चाहिए एक तरीके से, इसलिए मैंने ये कोर्स ज्वाइन किया। ओके धन्यवाद। थैंक यू। पर चक्कर क्या है कि ये इतना छोटा एक कोर्स है कि मुझे नहीं मालूम कि कितना आप लोगों को सबको ये फायदा देगा करेगा। एक्चुअली ये केवल ऐसा एक कोर्स है जो कि आपको संगीत की पोटेंशियल्स के बारे में कुछ बताएगा तो, लेकिन बहुत कुछ तो सीखने का ना तो समय मिल पाता है, इसमें थोड़ा कम ही समय है, 6 महीने में क्या कर पाएंगे। जो बिल्कुल नए लोग हैं उनके लिए थोड़ा सा अच्छा रहता है, और अगर कोई आगे पढ़ना चाहता है तो उसके लिए ये एज अ स्टेपिंग स्टोन, जैसे इन्होंने कहा ना गांधर्व में पढ़ रहे हैं, फर्स्ट ईयर है या सेकेंड ईयर है, इस तरीके से जो एज अ स्टेपिंग स्टोन ये कोर्स काफी फायदा कर देता है। बिकॉज जैसे आप गांधर्व या किसी डिप्लोमा वाले विद्यापीठ से आप लोग जब म्यूजिक पढ़ते हैं तो उससे थियोरी या क्या कहूँ कि थियोरी, जो म्यूजिक की थियोरी है वो तो आपको समझ में आ जाएगा, लेकिन यूनिवर्सिटी लेवल पे हम म्यूजिक को सोशियोलॉजी के साथ में जोड़ के पढ़ते हैं और भी कई चीजों के साथ में जोड़ के पढ़ते हैं, तो वो एक जो पर्सपेक्टिव है वो मिल नहीं पाता इन डिप्लोमा कोर्सेज में, तो वो एक एडअप हो जाता है अगर आप इस टाइप के कोर्सेज करें। खैर मैम, अगर मेरा एक सवाल यहाँ पे पूछना चाहूँगा मैं, अगर इजाजत है तो। जी जैसे मान लिया हमने ये कोर्स किया अच्छे से, तो इग्नू में और आगे संगीत सीखने के लिए कोई रास्ता है हमारे पास, कोई दूसरा कोर्स या कोई एडवांस कोर्स? हम लोग जुलाई से शुरू कर रहे हैं बीए शुरू कर रहे हैं जुलाई से। ऑलरेडी मेरे ख्याल से जो जुलाई की जो एग्जैक्ट जुलाई पे तो शुरू नहीं हो पाएगा, बिकॉज ऑल द कैलेंडर्स आर पोस्टपोन ड्यू टू कोविड सिचुएशन, लेकिन जब भी वो निकलेगा हमारा कोर्स उसमें होगा, आप देखिएगा। तो हम लोग जुलाई के महीने से बीए स्टार्ट कर रहे हैं। What only thing for you, it is a problem because Dikshit, 15 on each semester you have to come to Delhi for 15 days and you have to finish off your practical course. डायरेक्ट मेंटरिंग जो है हम लोग थ्रू यूट्यूब आपको क्लासेस तो देंगे, लेकिन एक मेंटरिंग जो नहीं हो पाता है वो मेंटरिंग हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि हर सेमेस्टर में 15 डेज के लिए हम सामने बुला के मेंटरिंग कराएं, और उसके बाद में जो प्रैक्टिकल एग्जामिनेशन है वो वही कंप्लीट करके आपको भेजेंगे, फिर आप जो है एग्जामिनेशन दीजिएगा अपने अलग से। जी जी, ये बीए के लिए बोल रहे हैं ना मैम आप? बीए के लिए, हाँ। जी, जी, जी। और वैसे भी आपने ये जो कोर्स सर्टिफिकेट कोर्स लिया है, तो आप इसका जो क्या कहते हैं थियोरी का जो पेपर होगा, थियोरी का पेपर तो सेंटर में जाके देना पड़ेगा, तो आपके पास में आप कैसे आएंगे? आपको इंडिया आना पड़ेगा सेंटर के लिए। जब मैंने एडमिशन लिया था तब तो सोचा था मैम सब कुछ नॉर्मल हो जाएगा तो एक बार आ जाऊंगा। फरीदाबाद में मेरे भाई रहते हैं तो मेरा आना जाना लगा रहता है। अच्छा। अभी तो ये कोविड की वजह से सिर्फ अनिश्चित है, अदरवाइज इंडिया आता जाता रहता हूँ मैं। ओह, फिर तो ठीक है। मेरा खुद का घर भी है। फिर तो ठीक है, फिर कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो वही मैं सोच रही थी कि इतने दूर से कैसे आप करेंगे। जी। तो ये हो जाएगा, फिर तो आप एग्जाम दे सकते हैं, कभी भी दे सकते हैं। आपके पास में समय है 2 साल का, मतलब 4 सेमेस्टर्स आर देयर। if you cannot give your exam this semester, then you have 3 more semesters to go.
For certificate, ma'am, right? For certificate, yeah, for certificate. जी. And for BA, minimum period is 3 years and maximum period is 6 years. जी. So you can do that way also. That you can do. हाँ. BA का कोर्स अच्छा तैयार हो रहा है, but हाँ, it will be heavy on theory part also. थ्योरी पार्ट तो इसमें भी, मतलब सर्टिफिकेट कोर्स को देखते हुए थ्योरी इसमें भी हेवी ही है. मैम मुझे भी एक क्वेश्चन था जी. मैम मैंने जैसे देखा है कि मोस्ट ऑफ द म्यूजिक कोर्सेज में और जहाँ पर भी म्यूजिक के लिए एडमिशन होता है वहाँ दे आस्क फॉर कि वेदर यू हैव टू हैव म्यूजिक एज अ सब्जेक्ट इन योर 12th और या फिर आपने किसी गुरु से 5 या 3 साल सीखा हुआ हो. हाँ. तो मैम फॉर मी जस्ट मतलब मैंने किसी से नहीं सीखा है और ना ही मेरा 12th में म्यूजिक था. तो फॉर मी इट्स वेरी डिफिकल्ट टू टेक एडमिशन ऑन एनी ऑफ द कोर्सेज और द स्कूल. नहीं, इग्नू में तो हमने रखा नहीं ये चीज, बिकॉज इग्नू एक्चुअली बना ही इसीलिए है कि जो लोगों को और जगह पे कई कारणों से फॉर्मल एजुकेशन नहीं मिल पाती है, उन लोगों को फॉर्मल एजुकेशन दिलाई जा सके. इसके ये मोटो ही ये था यूनिवर्सिटी का. तो इसलिए टू हैव मोर स्टूडेंट्स, क्योंकि अब अगर मैं इग्नू थ्रू ऑनलाइन सिखा रही हूँ तो मेरे लिए तो कोई सीमा नहीं है ना, बिकॉज सर सिंगापुर से भी सिखा रहे हैं. इफ एनीबडी इज इंटरेस्टेड टू कम टू दिल्ली एंड हैव 15 days classes with us and then if they want to continue, then naturally उसको तो फिर इतना ही काफी है कि अगर वो क्लास 12 पास है तो वो बीए में ज्वाइन कर सकता है. It is a desirable condition that if you are, if you have learned music from any other source, then it is good. Okay, ma'am. मनोज. जी मनोज. और मैम मेरा फोन में प्रॉब्लम थी, आपने बोला था उस टाइम में बोल नहीं पाता सर. हाँ बताइए मैम. अपने बारे में बताइए. फतेहाबाद हरियाणा से हूँ मैम. And currently working as branch manager in Yes Bank. अच्छा, बहुत अच्छी बात है. बैंक का जॉब करते करते आप कर पाएंगे संगीत? मैम बस मुझे शौक है. ठीक है, बहुत अच्छी बात है. इग्नू में पढ़ाने का ये एक बहुत मजेदार एक एक्सपीरियंस मुझे होता है. पिछले साल कोविड के दौरान मुझे डॉक्टर्स मिले थे, डाइटिशियंस मिले थे, जो कि अपना काम करते हुए, मतलब कोविड के हॉस्पिटल में काम करते हुए भी आके क्लास कर जाते थे. कहते थोड़ी देर के लिए अच्छा लगता है, तो ये एक्सपीरियंस अच्छा लगता है कि बीच में से आके म्यूजिक हम करके जाते हैं. तो ये एक मुझे तो अच्छा एक्सपीरियंस लग रहा है. जी मैम. अच्छा, अब पिछले संडे को मैंने कहा था आप लोगों को कि थोड़ा सा आप लोग, पर एक्चुअली ये जो थ्योरी का सेशन होता है ना काउंसलिंग में, इसमें इग्नू का यही तरीका है कि आप लोगों को जो मटेरियल दे दिया गया है वो आप अच्छे से पढ़ लीजिए, और पढ़ने के बाद में जो कुछ भी आप पूछना चाहते हैं, डिस्कस करना चाहते हैं, वो आप यहाँ पर डिस्कस कीजिए. तो इस लिहाज से मैंने कहा था कि फर्स्ट बुक तो कम से कम पढ़ ही लीजिएगा. आप लोगों ने पढ़ लिया क्या? आप लोग पोर्टल एक्सेस कर पाए सब लोग? जी मैम. फर्स्ट टाइम क्लास ज्वाइन किया, पहले मेरे को नहीं पता चला. मनोज को पहले पता नहीं चला. ओके. आज पहले आपने, अच्छा आपके पास में मेल गया होगा मनोज, और आपने पोर्टल देखा होगा. मैम बुक्स तो मेरे को मिल गई हैं. बुक्स मिल गई है? नहीं, पोर्टल देखा है आपने? नहीं मैम, पोर्टल नहीं देखा. एक बार देखिएगा, क्योंकि उसमें हमारा जितना भी खास करके प्रैक्टिकल की जो लेसन्स है ना, उसकी सारी वहां पर दी हुई है डिटेल भी, जो आपको बुक में नहीं मिलेगा.
जैसे जो गीत हमने बताए हैं वो गीत वहीं पर मिलेंगे आपको, और लिखे हुए उसके शब्द भी लिखे हुए वहीं पर मिलेंगे, और जो हमने क्लासेस रिकॉर्ड कर रखी है वो भी वहीं पर मिलेंगे आपको। तो पोर्टल में तो जाना ही पड़ेगा आपको। उसके बाद क्योंकि और इसके अलावा जो भी अनाउंसमेंट्स होते हैं वो पोर्टल्स के थ्रू ही होते हैं, क्योंकि मैं एक एक को, जैसे मेरी पिछली एक्सपीरियंस है कि सबको व्हाट्सएप का मेरा तो पूरा फोन भर गया, तो इसीलिए मैंने इस बार कहा था कि आप लोग कोई बना लीजिए और मुझे आप वो दे दीजिए, एक ऐड कर लीजिए। तो अगर आप लोगों में से कोई भी यहाँ पर जो अभी उपस्थित है उनका फोन नहीं है, तो फोन व्हाट्सएप ग्रुप में नहीं है तो प्लीज अभी फोन बता दीजिए, तो हम ऐड कर लेंगे उसको। मनोज, आप व्हाट्सएप ग्रुप में हैं? यस मैम, आज ऐड हो गया मैं। ऐड हो गए, ओके। मैम मैं नहीं हूँ मैम, आरव राज। आरव राज नहीं है, बताइए नंबर बताइए। मैम 999। अरे ये तो मेरे से तो नहीं लेगा, ये संगीता आपको ही करना पड़ेगा। मैंने अपना नंबर भी भेज दिया है ग्रुप पर यही अच्छा। तो अगर आप मुझे एक बार कांटेक्ट कर लेंगे मैं आपको ऐड कर लूंगी। हाँ ओके ओके। हाँ, इसी पे चैट पे देख लीजिए, चैट पे आपको मिल जाएगा उनका नंबर, और उस हिसाब से फिर। ओके, थैंक हाँ, यू। ये संगीत ने अपना, संगीता है ये, सॉरी। तो पोर्टल में आपको जाना ही पड़ेगा, और पोर्टल में मैंने असाइनमेंट्स भी अपलोड कर दिए हैं, तो असाइनमेंट्स देख लीजिएगा। OVA 1 OVA 2 का असाइनमेंट्स मैंने अपलोड कर दिया है, अभी OMU का नहीं किया है, ठीक है। अब आप बताएं कि आप लोगों ने पढ़ लिया है वो किताब, पहली बुक जो है वो पढ़ ली क्या? यस मैडम। मैम पहली बुक के 2 चैप्टर तो हो गए हैं, थर्ड वन नहीं हो पाया अभी। कोई बात नहीं। मतलब आपको इसमें, आपको लैंग्वेज में कोई प्रॉब्लम तो नहीं आ रही? आप लोग ठीक से इसको देख पा रहे हो ना? कोई मतलब दिक्कत तो नहीं है कि क्या है क्या नहीं है समझ नहीं आ रहा? नो मैम, सभी इन अ इजी लैंग्वेज, काफी इजी लैंग्वेज में दिया होगा। हाँ, अच्छा, दूसरी बात ये है कि अगर आपको लगता है कि ये हम क्यों पढ़े, ये तो ऑलमोस्ट मतलब जिसे कहते हैं कि संगीत से रिलेटेड तो कोई बात नहीं है, लेकिन ऐसा नहीं है। इंडियन कल्चर के अंदर म्यूजिक इज इंटीग्रेटेड इनटू इंडियन कल्चर। तो वो किसी भी कल्चर में देखिए, कल्चर के अंदर म्यूजिक जो है एक इम्पॉर्टेंट इंग्रेडिएंट्स की तरह रहती है, और अगर हम कल्चर की बारे में नहीं पढ़ेंगे, उस जगह के कल्चर के बारे में नहीं पढ़ेंगे, तो हम वहाँ के म्यूजिक के अंदर भी घुस नहीं पाते हैं। जैसे हमको लगता है ये क्या चीज है क्लासिकल म्यूजिक, ये क्यों है? मतलब हमारी जो रोजमर्रा की जिंदगी है उसमें हम शादी के गाने सुन लेते हैं, भजन सुन लेते हैं, यहाँ तक कि अगर किसी की मृत्यु हो जाए तो भी हम उस समय के लिए भी गाने हम अपने सोसाइटी में सुन लेते हैं। बच्चा घर में आता है, बच्चे के लिए हम लोग संगीत देख लेते हैं, पर कोई क्लासिकल म्यूजिक तो हमें देखना नहीं पड़ता, सुनना भी नहीं पड़ता, गाना भी नहीं पड़ता। तो ये क्या चीज है, ये क्यों हटके है अपने, और क्यों ये अपना कल्चरल हेरिटेज के अंतर्गत है? इस बात को समझने के लिए हम लोगों को इंडियन कल्चर के बारे में थोड़ा बहुत जानना पड़ेगा, क्योंकि म्यूजिक is an integrated part of any culture। तो वैसे तो जो हमारे पास में कल्चर के संबंध में इन किताबों में दी हुई है, जो बड़े हैं, जिनके बच्चे हैं, जो 6th 7th 8th में पढ़ते हैं, तो उनके बच्चों की सोशल स्टडीज की किताबों में जितनी दी हुई है उतनी ही इसमें दी हुई है, बल्कि उससे भी कम दी हुई है। बस सिर्फ यही बताया गया है कि इंडियन कल्चर जो कॉम्पोजिट चीज है, जो कल्चर एक बात है जिसको कि छोटे बच्चे नहीं समझ पाते कि कल्चर क्या है, लेकिन अब
जब आप 20-22-25 साल तक होने लगते हो, आपको समझ में आने लगता है कि संस्कृति क्या चीज है, हमारी जो संस्कृति है वो क्या चीज है, किसे कहते हैं संस्कृति। सब कुछ को मिला जुला के एक जो रूप बनता है वो संस्कृति है। उसके अंदर आपकी भाषा आती है, आपका खान पान आता है, आपका पढ़ाई लिखाई आती है, आपकी एज ओल्ड मान्यताएं आती है, जिससे आपके अंदर एक अलग तरह की पहचान की एहसास बनती है। मैं राजस्थानी हूँ, मैं बंगाली हूँ, इस टाइप का एक जो आइडेंटिटी बनती है वो उन मान्यताओं के कारण बनती है जो हमारे पिता और दादाजी, परदादाजी ये लोग मानते चले आ रहे हैं। और चाहे हमें उन्होंने बहुत अच्छे से मतलब डांट डपट के चीजों को मनवाया नहीं होगा, तो भी हम देखते हैं कि हमारे घर में ये वाले प्रोग्राम्स होते हैं, मतलब शादी ब्याह में ऐसी शादी होती है, इस तरीके से हम तैयार होते हैं, हमारे पहनावे ये होते हैं, जो ट्रेडिशनल पहनावा है वो डिफरेंट है। जो हम ऑफिस में जाते हैं तो ऑफिस में तो हम शर्ट पैंट्स ही पहनते हैं या अपनी जो लेडीज की जो ट्रेडिशनल ड्रेस है वो पहनते हैं, लेकिन घर की जो ड्रेस है हर प्रांत की अपनी अपनी ड्रेस है, और वो घर में हम देखते हैं कि वो ड्रेसेस वो पहनते हैं। घर के खान पान भी डिफरेंट होते हैं। तो इन सब चीजों का असर हमारी सोच पे भी पड़ता है, और हम किस तरीके से अपनी सोच को एक्सप्रेस करते हैं कला के जरिए, उस पे भी पड़ता है। अगर हम पेंटर हैं तो हमारी पेंटिंग में उसकी क्या कहना चाहिए, छाया आती है। हम अगर संगीत करते हैं तो संगीत में उसकी छाया आती है। तो ये इन सब चीजों से मिला जुला एक रूप है जो है संस्कृति। संस्कृति को किस तरीके से डिफाइन किया गया है वो हमारी इस किताब में आपको प्राप्त हो जाएगी। और इसके अलावा एज ए इंडियन, मतलब जब इस मतलब आज आप लोग जिस उम्र के बच्चे मतलब स्टूडेंट्स हैं उसको देखते हुए जो क्या कहते हैं फेस्टिवल्स के बारे में बताई गई है या जो रिलीजियंस के बारे में बताई गई है इन किताबों में, तो आप लोगों को प्रॉब्लम नहीं आएगी। लेकिन जब किताब लिखी जाती है तो यही सोच के लिखी जाती है कि इग्नू में ये लोग आ रहे हैं, हो सकता है कि इनकी बैकग्राउंड ऐसी नहीं है कि ये इन सब चीजों को जान पाए या सीख पाए। तो इसलिए इसको मद्देनजर रखते हुए फेस्टिवल्स के बारे में, रिलीजन्स के बारे में, कुछ एक रिलीजियस प्लेसेस के बारे में जो है इनमें बताया गया है, और उनकी जो रिलीजियंस की जो एसेंस है उसके बारे में बताया गया है कि उसके अंदर क्या है, किसी रिलीजन को कैसे पालन करना चाहिए, इस टाइप की बातें जो बताई गई हैं। और किस तरह हमारे इस देश में पहले बौद्ध धर्म रहा, फिर जैन धर्म रहा, फिर सनातन धर्म आया, फिर उसके बाद मुस्लिम धर्म आया, इस तरीके से, और बाद में ईसाई भी आई, और फिर भी हम लोग अलग अलग ना होके एक मिल गए, एक कॉलड्रॉन में हम लोग सब एक साथ जैसे कि मिल गए और एक मिली जुली संस्कृति हम बन गए हैं। तो वो किस प्रकार से हम लोगों को एक साथ रहने में सहायक होते हैं, इन सब चीजों के बारे में इस कोर्स में डाला गया है। और इन्हीं सब जो हमारी मान्यताएं, हमारी रिलीजियंस, हमारी रीजियंस, डिफरेंट रीजियंस, यहीं से उपज के आती है हमारी संगीत। हमारा संगीत वैदिक परंपरा से शुरू हुआ, लेकिन उसके बाद में जैसे जैसे हमारे देश में राजनीतिक परिस्थितियां बदलती गई, वैसे वैसे हमारे संगीत में उसका असर पड़ता गया। अब सब कहते हैं कि भारत की संस्कृति की जो नींव पड़ी वो वैदिक संस्कृति से पड़ी, लेकिन हम जानते हैं कि वेदों से पहले भी मोहनजोदारो थी, मोहनजोदारो सभ्यता थी। और ये आप सोच के देखो कि वैदिक सभ्यता बताते हैं हद से हद 4000 BC, ठीक है। इसका जो डेटिंग है वो किया गया है 4000 BC। तो 4000 BC से पहले अगर मोहनजोदारो सभ्यता थी तो मोहनजोदारो सभ्यता की भी उम्र उतनी ही होगी
तो कुल मिला के 10,000 साल की हमको इतिहास आज की तारीख में देखने को मिलती है। लेकिन ये पृथ्वी तो कितनी पुरानी है ना, और इस पृथ्वी की कितनी पुरानी मतलब इतिहास रही होगी, और जाने कितनी सभ्यताएं आई, और आज हम देख ही रहे हैं कि कोरोना महामारी के कारण किस तरीके से एक विशाल जो है तबाही मच रही है सब जगह। कहते हैं कि मोहनजोदारो सभ्यता भी इसी प्रकार से विलुप्त हो गई थी। कोई एक ऐसी शायद महामारी आई थी, या फिर कोई भूचाल आया था, या कुछ आया था जिसकी वजह से वो पूरी जो वैली थी वो वहां पर जितने भी लोग थे वो सब मारे गए थे। तो मतलब ये है कि हमारी जो एक जो कल्चर है उसको हम वेदों से भी पहले, आप देखिए कि मोहनजोदारो सभ्यता के समय में भी हम अगर सोचे तो ठीक है तबाही मची, लेकिन कुछ तो कहीं पर कुछ लोग तो बचे होंगे, सारे के सारे तो एकदम मरे नहीं होंगे, कहीं किसी और जगह उस जगह को छोड़ के चले गए होंगे तो बचे होंगे कहीं ना कहीं, और उनके अंदर वो पुरानी कल्चर की कहीं ना कहीं छाया रही होगी। उसके बाद वेद आया, उसके बाद बौद्ध धर्म आया, उसके बाद एक एक करके जो राजनीतिक जो है अपहीवल्स आए, मतलब चेंजेस आए, उसके कारण हमारा पहनावा, खान पान, बातचीत, भाषा और यहाँ तक कि संगीत, मतलब स्टेज पर यानी मंच पर की जाने वाली कलाएं या फिर आर्किटेक्चर, इन सभी पर उसका प्रभाव पड़ा। अगर हम उसी वैदिक सभ्यता को लेके रहते तो हमारी ताजमहल नहीं बनता, हमारी क्या कहते हैं राष्ट्रपति भवन जो है वो ब्रिटिश आर्किटेक्ट है वो भी नहीं बनता। तो इस तरीके से मतलब हम कहीं एक जगह पर रुके नहीं रहे। हम लोग सोच सकते, दो तरीके की सोच है। एक ये है कि हमारी वैदिक सभ्यता की उस बिल्कुल तबाही कर दी है, उसमें कुछ भी नहीं रह गया है, हम लोग बहुत अच्छे थे और हम लोग अब बिल्कुल खराब हो गए हैं, और इस तरीके की एक मानसिकता है। दूसरी मानसिकता ये है कि हमारी वैदिक सभ्यता थी, वो भी हमारे कहीं ना कहीं जहन में है। उसके बाद बौद्धिक आई, तो बौद्ध धर्म आया, तो उसकी भी कहीं ना कहीं हमारे अंदर जहन में उसकी जो एसेंस है वो है। जैन ही आए तो जैन की एसेंस हमारे, और हम लोग धीरे धीरे प्रबुद्ध होते चले गए। हमको वेद का भी पता है, बुद्ध का भी पता है, जैन का भी पता है, मुस्लिम का भी पता है, हिंदू का भी पता है, सनातन पूर्व पुराण सब कुछ का हमें एसेंस पता है। और हम धीरे धीरे जो हम हमारा ये देश पुराना होता चला जा रहा है, यूं हम अपने अंदर उन सभी क्या कहते हैं समय का जो निचोड़ है, उस संस्कृति का जो निचोड़ है, उसको हम समाहित करते चले जा रहे हैं और हम बदलते भी जा रहे हैं थोड़ी बहुत। अगर हम ना बदलें तो हम कहीं मर जाएंगे। आप देखिए कि एक जगह पर अगर पानी कहीं पर ठहरा रहता है तो उसमें सड़ांध आ जाती है। नदी में कभी सड़ांध नहीं आती क्योंकि नदी बहती रहती है। नदी में नया नया पानी आता रहता है, इसलिए वो कभी नहीं सड़ता। ये सभ्यता भी उस तरीके से है और उसी के साथ हमारी संस्कृति भी धीरे धीरे जो है वो एनरिच होती जाती है। इसलिए हमें पीछे का भी एक बार देखना पड़ता है कि हमारी संस्कृति में क्या क्या चीज रही, हमारी हिस्ट्री में क्या क्या चीज रही, हमारे वे ऑफ लाइफ में क्या क्या चीजें आई और हमारे अंदर बदलाव पैदा किए, अच्छा हो बुरा हो। लेकिन ये तो फैक्ट है, आप उसे अच्छा कहो चाहे बुरा कहो, उसको नकार तो नहीं सकते, वही है हमारा फैक्ट। तो इसलिए ये इस टाइप की पर्सपेक्टिव आपको दिलाने के लिए OVA 001 को सोचा गया है। ठीक है, तो जी मैम ये संगीत का निर्माण किसने किया और कैसे हुआ? आप कह सकते हैं कि इंसान का निर्माण किसने किया? नो मैम, नहीं कह सकते ना। आप कह सकते हैं कि भाषा का निर्माण किसने किया? भाषा का निर्माण तो इंसान ने किया है।
इंसान तो करेगा ही, तो इंसान तो कोई एक इंसान तो नहीं ना। आपका जो क्वेश्चन था वो ये था, संगीत का निर्माण किसने किया? तो संगीत का निर्माण कौन सा करेगा? इंसान ही करेगा। मतलब मैम उस पर्टिकुलर पर्सन का नाम और ऐसे बोल रहा हूँ। हाँ, तो वही मैं भी वही पूछ रही हूँ कि उस पर्टिकुलर इंसान का नाम बताइए जिन्होंने भाषा का जो है इजाद किया। नो, मेरे को तो नहीं पता, मेरे को इतनी जानकारी नहीं है इस बारे में। आपको सोचना पड़ेगा बेटा। जिस वक्त आप थोड़ा सा गहन तरीके से सोचना शुरू करेंगे तो आप जानेंगे कि इंसान जब जंगल से धीरे धीरे नगर क्यों, वैसे भी जंगल में भी जब रहता था, वो अपनी बात दूसरे तक पहुंचाने के लिए कुछ ना कुछ भाषा का तो प्रयोग करता रहा है ना। चाहे वो जेस्चरल भाषा हो, चाहे आप देखिए कि जंगल के जो क्या कहते हैं जानवर होते हैं, वो आपस में बात करते हैं ना, आपस में उनकी बात रहती है। अब हम लोग अभी अभी एक जंगल में गए थे, इसके लिए सरिस्का गए थे, आपके राजस्थान में ही गए थे, और वहां पर हम टाइगर्स की जो है साइटिंग हो रही थी, तो उसके लिए हम गए थे। तो गाइड्स ने बताया कि एक दादी है शेर और एक उसका पोता है। ये लोग आजकल बहुत नीचे आ रहे हैं। और जो दादी है वो निगरानी रखता है पोते पर कि कहीं उस पर कुछ आपदा ना आए। अब शेर है, वो जंगल का शेर है, उसको कौन क्या नुकसान कर सकता है, सब उससे डरते हैं। लेकिन उन लोगों को भी पता चल गया कि यहाँ पर कोचिंग होती है, टाइगर्स की कोचिंग होती है, तो टाइगर्स को भी पता है कि वो महफूज नहीं है जंगलों में। तो अब आप बताइए कि उनके पास कुछ ना कुछ तो समझदारी है ना, कि उस जंगल में रहते हुए भी, वो जानवर होते हुए भी, उसके पास कोई भाषा न होते हुए भी उसके दिमाग में ये समझदारी है कि इस जंगल में मैं महफूज नहीं हूँ, मैं सुरक्षित नहीं हूँ। तो मेरा जो पोता पानी पीने जाता है, कहीं उसको कोई पोचिंग ना कर ले, इसलिए वो उसके पीछे पीछे जाती है। जी। तो भाषा है उनके अंदर। जी। तो यहीं से शुरू होती है जंगली इंसान की भी भाषा। फिर वो धीरे धीरे आवाज करने लगता है। और आजकल तो आपको इमेजिन करना मुश्किल नहीं होगा, अगर आप पुराने पिक्चरों में देखोगे तो किस तरीके से बड़े बड़े जो है, टार्जन तो देखा होगा आप लोगों ने, टार्जन की कार्टून्स तो देखी होगी, किस तरीके से वो आवाज करता है और बताता है। उसके पास कोई भाषा नहीं है, लेकिन वो बताता है अपनी बात जानवरों को कि वो क्या करना चाहता है, क्या बात सोचता है। तो इन सब चीजों से ही धीरे 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 भाषा का इजाद हुआ। इंसान जब अपनी जीवा से जो है अलग अलग आवाज करने की तरीकों को समझने लगा, तो अलग अलग लेटर्स तैयार हुए, और जिस तरीके से भाषा तैयार होने लगी, उसी के साथ साथ संगीत भी उपजने लगी। क्योंकि इंसान जब अपनी बात कहता था, तो वो अगर उसमें सिर्फ स्वर वर्ण होते थे, हुआ इस तरीके की आवाज से वो अगर बात करता था, तो वही जब जो दूर से बात करता है तो उसकी पुकार को वो समझता है कि मैं एक 10 किलोमीटर दूर की किसी व्यक्ति को मैं कुछ कहना चाह रहा हूँ, तो वो किस तरीके से अपनी आवाज पहुंचाऊं। तो वो जो भी तरीका अपनाता था, वही कहते हैं कि साइन लैंग्वेज, आई मीन साउंड की फॉर्मल लैंग्वेज और संगीत, इन दोनों चीजों की जो इजाद है वो साइड बाय साइड होती रही, और धीरे धीरे वो पनपता रहा। धीरे धीरे उसके अंदर लेटर्स की बात समझ में आने लगी, भाषा तैयार होने लगी। अलग अलग रीजन्स में अलग अलग तरीके से इंसानों की जीवा चलती है, और उस तरीके से वो अपनी भाषा को बनाते हैं। इसी तरीके से उनका संगीत भी अपने तरीके से साथ साथ डेवलप होता रहा। ठीक है। ये हमारे जो गुरु जी है, जो जिनसे मैं तालीम ले रहा हूँ, वो तो मतलब वो उनका कहना ये है कि ये ईश्वर की देन है, ये जो संगीत है।
ब्रह्मा जी ने इसको? देखिए, हर चीज को धर्म से जोड़ लेना, एक तरीके से मैं आपकी भावनाओं को ठेस नहीं पहुंचाना चाहती, क्योंकि धर्म अपनी जगह पर है, लेकिन हर चीज को हम अपने धर्म के साथ में अगर जोड़ लेंगे तो एक इजी जवाब आपको मिल जाता है और आप सोचना छोड़ देते हैं। आपको किसी ने बोला कि मतलब भाई हमारा संगीत जो है वो ब्रह्मा जी की देन है। आपने मान लिया कि कोई ब्रह्मा जी हैं जो आसमान में बैठे रहते हैं, जिनके 4 मुख हैं, जिनकी जो है एक बड़ी सी मुकुट पहनी हुई है, इस तरीके की आपको वो भी बता दिया गया है आपको कि इस तरीके के हैं ब्रह्मा जी। तो आप कभी अपने दिमाग पर जोर नहीं डालेंगे कि भाषा कैसे उत्पन्न हुई या संगीत कैसे उत्पन्न हुआ। आपके पास एक इजी आंसर है, आप कोई श्रम नहीं करना चाहते, आप यही मान के आराम से बैठना चाहते हो कि ब्रह्मा जी ने संगीत का उत्पन्न किया है और ब्रह्मा जी कहीं आसमान में बैठे हैं। तो मैम इसका जवाब यही है फिर कि वे ऑफ कम्युनिकेशन की वजह से संगीत का उत्पादन हुआ? नहीं, मैं आपको हाँ भी नहीं कहूंगी, ना भी नहीं कहूंगी। मैं आपको प्रेरित करूंगी कि आप खुद सोचिए इस बात को, क्योंकि मैं एक 6 साल के बच्चे के साथ बात नहीं कर रही हूँ, मैं तो एक 20-21 साल के बच्चे के साथ बात कर रही हूँ जो कि अपनी बात को समझ सकता है और जो मतलब अच्छे बुरे की धीरे धीरे उसको समझ आ गई है। तो अब मैं इजी आंसर आपको नहीं देना चाहूंगी, आप खुद ढूंढिए कि संगीत उत्पन्न कैसे हुआ। जी मैम, थैंक यू। हम लोग ये जानते हैं, जब भी हम पढ़ेंगे, आप अपनी लेसन में भी जब पढ़ेंगे तो आप देखेंगे संगीत उत्पन्न कैसे हुआ। झरने की झरझर आवाज से, बारिश की झरझर आवाज से, इससे उससे, इस तरीके से इंसान को एक जो है प्रेरणा मिली कि वो भी कोई संगीत तैयार करेगा। ये सब कुछ संगीत में देखिए कैसे हो सकता है। आप बारिश के आवाज से, आज की तारीख में आप जानते हैं कि इस गाने में बारिश की बात कही गई है, बारिश झरते ही आपको वो गाना याद आ जाएगा जो आपको प्रिय होगा। लेकिन जिस वक्त भाषा नहीं था, जिस वक्त संगीत नाम की कोई चीज नहीं थी, उस वक्त बरसात आपको कैसे कह सकता है कि आप संगीत, मतलब इससे आपको संगीत की वो मिलेगी, प्रेरणा मिलेगी? ऐसे नहीं होता। हर कोई चीज धीरे धीरे पनपता है और धीरे धीरे आगे बढ़ता है, और मतलब सदियों लग जाते हैं एक भाषा को भाषा के स्तर तक पहुंचने में, जिसे कि आप लिख सकते हैं, जिसकी आप डिक्शनरी बना सकते हैं। इस स्तर तक पहुंचने में एक भाषा को सदियों बीत जाती है। इसी तरीके से संगीत भी सदियों पुरानी चीज है जो कि मानव सभ्यता के साथ ही साथ पनपी है और साथ ही साथ विकसित हुई है। एक दिन में किसी ने नहीं कहा कि ये सा है, ये रे है, आप गाओ। ठीक है ना? अभी आप छोटे हो, आप अभी शायद इंडिया को भी आपने घूम के नहीं देखा होगा। मैं इंडिया की ही बात कर लेती हूँ। इंडिया में यदि आप नॉर्थ ईस्ट में नागालैंड की तरफ जाएंगे, आप मेघालय की तरफ जाएंगे, इन सब जगहों पे आप जाएंगे तो आप देखेंगे उनका संगीत कितना अलग है। जिसको वो संगीत कह रहे हैं उसको आपको लग ही नहीं रहा कि ये संगीत है। आपको लगेगा कि अभी भी जैसे कोई जंगली इंसान बात कर रहा हो, इस तरीके से वो संगीत कर रहे हैं। मैं थाईलैंड में गई थी, तो वहां पर थाईलैंड की म्यूजिक यूनिवर्सिटी में ही गई। उन लोगों ने शो रखा, अब हमारा भी शो हुआ और उनका भी शो हुआ। तो उनका शो मैंने जब देखा तो मुझे कई बातें जो हम लोगों मैंने जो, क्योंकि मेरा बाय चांस मेरा थीसिस जो है वो प्राचीन सभ्यताओं में संगीत के ऊपर है, तो कई चीजें तो किताबी ही पढ़नी पड़ी थी, क्योंकि जब मैं पढ़ती थी इतना पैसा नहीं था कि मैं उन सब कॉन्टिनेंट्स में जाऊं और वहां की संगीत को समझूं। लेकिन किताबें पढ़ पढ़ के समझती थी, तो भी मैं कन्विंस नहीं हो पाती थी जो किताबों में लिखी हुई थी कि इस तरीके से संगीत होता है।
फिर जब यहाँ थाईलैंड में जाके मैंने उनका गाना सुना तो मैं तब समझ पाई कि संगीत कहाँ से पनपा होगा और कैसे पनपा होगा, क्योंकि उनकी संगीत अभी भी बहुत जंगली है। मतलब लगता ही नहीं है कि मतलब कई लोग जैसे कहते हैं ना कि हमारे इसमें भी लिखा हुआ है कि कोयल की ध्वनि से पंचम निकला है, या हाथी की पुकार से निषाद निकला है, इस तरीके से शब्द बताया जाता है। तो मैं इसको इमेजिन नहीं कर पाती थी कि ऐसा कैसे हो सकता है, लेकिन उन लोग अपनी संगीत में कभी हाथी की आवाज, कभी घोड़े की आवाज, कभी मतलब कैसे कैसे जंगली जानवरों की आवाज संगीत के अंदर उन्होंने पिरोया हुआ था और वैसे ही गा रहे थे। मैम तो क्या हम ये कह सकते हैं कि जैसे आप एग्जांपल दे रहे थे थाईलैंड का, कि वहाँ का संगीत अभी भी उसके रॉ फॉर्म में है? हाँ बिल्कुल, उसके रॉ फॉर्म में है, मतलब जहाँ से वो इनिशिएट हुआ है उसमें कुछ भी विद टाइम और विद चेंज अभी तक कोई चेंजेस नहीं आए हैं? अभी चेंज आ गया है काफी हद तक। उनके ट्रेडिशनल म्यूजिक हम सुन रहे थे, हाँ लेकिन अभी जो म्यूजिक वो करते हो टोटली वेस्टर्न म्यूजिक है। हाँ, अभी तो वो वेस्टर्न है, लेकिन जो आप बता रहे हैं कि ट्रेडिशनल वो अपने रॉ फॉर्म में है। हाँ जी। हमारे नागालैंड में भी काफी हद तक रॉ फॉर्म में। हाँ मैम, वहाँ पर जो हॉर्नबिल वाला फेस्टिवल होता है उसमें अरे भी आप तो नागालैंड ही रह रही है ना शायद इस वक्त? नहीं मैम, मैं तो अभी ईस्ट यूपी में गोरखपुर। ओह हाँ, गोरखपुर। मैडम ये कैसे कह सकते हैं कि वो रॉ फॉर्म में है? कोई स्पेसिफिक बात ऐसी जो उसके म्यूजिक को ये बता रही है कि अभी भी पुराना है? या देखिए वैसे विश्व तो है ना काफी बदलता रहता है, लेकिन कुछ एक जगह ऐसी होती है दुर्गम जगह जहां पर कि बाहर की सभ्यता बहुत ज्यादा घुस नहीं पाती है। तो ऐसे कई सोसाइटीज हैं, जैसे आप चले जाए अंडमान निकोबार, अब तो सबके लिए खुल गया है, लेकिन फिर भी वहां की जो जारवा जाति है उस जाति को फिर भी हम नहीं पकड़ पाते। दूर से देख लेते हैं कि वो जारवा जा रहा है करके, लेकिन उनकी सोसाइटी में हम नहीं जा सकते। और हम चाहे उनको कितना भी प्रोत्साहन दे रहे हैं, सरकार दे रही होगी मालूम नहीं, पर जैसे जनजातियों को दिया जाता है जो प्रोत्साहन, तो जबरदस्ती प्रोत्साहन तो नहीं दिया जाता है ना, प्रोत्साहन के रूप में ही प्रोत्साहन दिया जाता है कि वो चाहे तो वो आगे बढ़े। वो चाहते ही नहीं है। अगर कुछ जाति जो है वो अपने आप में इतने ज्यादा मतलब चाहते ही नहीं है वो जगह छोड़ के आने के लिए, तो नेचुरली उनकी जो बस्ती है उस बस्ती में हम लोग जाके भी नहीं रह सकते हैं। तो ऐसी जगहों पे नेचुरली वो अपनी संस्कृति को काफी हद तक आदिम तरीके से ही रखते हैं। तो इसलिए वहां पर जो है वो पहुंचती नहीं है, क्या कहते हैं, अगर हम कहें कि सभ्यता आई, ये शब्द बहुत अच्छी बात नहीं है। सभ्यता उनको नहीं आई होगी क्या? नहीं, उनकी समाज के हिसाब से वो भी अपने तरीके से सभ्य हो, पर हम लोग जिस तरीके से आगे बढ़ चुके हैं वो अपना वो पुराना उन्होंने अभी तक नहीं छोड़ा है। ऐसे कई जनजाति अंदर अंदर कहीं कहीं लुके छुपे बैठे हैं। एंथ्रोपोलॉजी के लोग आपको बता सकते हैं कि किस तरीके से कहाँ कहाँ लुके छुपे बैठे हैं और किस तरीके से अपनी संस्कृति को वो बचाए चले आ रहे हैं। थैंक यू। ठीक है, और कुछ पूछना चाहेंगे, कुछ बातचीत और करना चाहेंगे तो करिए। हेलो मैम, हाँ, गुड आफ्टरनून। गुड आफ्टरनून। पहले तो बहुत शुक्रिया, आपने ये जो क्लासेस शुरू की आज, और बड़ा अच्छा लगा क्लास करके। एक्चुअली मैंने मैम ये कोर्स छोटे भाई के लिए अप्लाई किया था, तो और मैंने अपना ईमेल रजिस्टर कर दिया था। तो जितने भी मैसेज हैं मुझको मिल रहे हैं उसको मैं सेंड नहीं कर पा रहा हूँ लिंक। क्लासेस उसको करनी है, अब कर मैं रहा हूँ लेकिन मुझको अच्छा लग रहा है क्योंकि मुझको भी थोड़ा सा इंटरेस्ट है म्यूजिक में।
कुछ ऐसा रास्ता है कि उसको उसका ईमेल पे लिंक चला जाए और वो क्लास कर सके रेगुलर? हाँ, क्योंकि मैंने आप जो जी एक व्हाट्सएप ग्रुप बना है, आप जी यहीं जी पर चैट में उनका फोन नंबर दे दीजिए और उनका ईमेल आईडी भी दे दीजिए इसी चैट पे। जी जी तो जो लोग व्हाट्सएप ग्रुप जिन्होंने बनाया है, ये जी देखिए संगीता जौला करके एक जने का आ रहा है चैट में, जी उसमें उसी नंबर पे आप अपना नंबर भेज दीजिए भाई का, जी जी और उसको ऐड कर लिया जाएगा ना? उनका ईमेल आईडी भी दे दीजिए। ठीक है मैम, मैं करता हूँ ना, तो वो क्लास कर सकेगा उससे। हाँ। एंड बहुत अच्छा लगा मैम ना आपकी क्लास की मैंने, क्योंकि एक कोर्स मैं पहले भी कर चुका हूँ थिएटर आर्ट्स का, तो उसमें अच्छा, व्हाट्सएप ग्रुप ही हम लोगों का बनाया गया था और हाँ बड़ी जी, अच्छे से हाँ। क्लासेस हुई थी, रिजल्ट गया। ठीक है मैम, देता हूँ मैं। थैंक यू मैम। जी जी। ठीक है, और कोई कुछ पूछना चाहेंगे? अच्छा, अब मैं जो क्विजेस बाय चांस बना के भेजूंगी ना, सभी लोग बड़े हैं, सबको लगेगा कि ये बचकानी क्विज है, लेकिन मैं जो कोर्स है उसके बाहर तो जाके मैं यहाँ पर तो बात कर सकती हूँ आप लोगों से, पर जो लिखित में जब मैं प्रश्न करूंगी तो वो मैं वही करूंगी जो उन किताबों में लिखी हुई बातें हैं उसको आधार करके। तो इसलिए आप लोग उसी तरीके से उसको अटेंड कीजिएगा। और असाइनमेंट तो मैं दे ही चुकी हूँ, और क्विजेस सिर्फ इसलिए कि आप मोटिवेटेड रहे कि कुछ करना है, वरना छूट जाता है, क्योंकि डिस्टेंस लर्निंग में यही सबसे बड़ी बात है कि आप बंधे रहें क्लास से। तो अगर कुछ ना कुछ लिखते रहेंगे, करते रहेंगे, असाइनमेंट्स करते रहेंगे, तो बने रहेंगे, मतलब वरना इंटरेस्ट चली जाती है। ठीक है, नेक्स्ट क्लास। यस मैम। जी मनोज जी बोलिए। मैम असाइनमेंट्स कहाँ से मिलेगी मेरे को? असाइनमेंट पोर्टल पे है। पोर्टल पे ही? ओके। हाँ, पोर्टल पे है। आपने उस दिन क्लास नहीं किया था ना? नो मैम, मैं फर्स्ट टाइम किया है आज। ओके, तो पोर्टल में देखिए, आपको सबसे पहले नेविगेटिंग का एक वीडियो मिल जाएगा। पोर्टल को भी भेज दिया है यहाँ पर ग्रुप में। हाँ, ग्रुप में भी भेज दिया है। थैंक यू सो मच। ये जो है, ये साइट भेज रही हैं वो, उस साइट को जाएंगे तो पोर्टल आपको मिल जाएगा। एक तो दूसरी बात ये कि अगर आपने जीमेल आईडी दिया हुआ है तो ही आपको मिलेगा। जीमेल आईडी है ना आपका? हाँ जी मैम। हाँ, तो मिल जाएगा। फिर दूसरी बात ये है कि एक और क्या कहना चाह रही थी, हाँ, उसके अंदर आप एक एक पेज को ना खोल के देखिएगा, आपको उसमें नेविगेटिंग की भी एक वीडियो पड़ी मिलेगी। पिछली बार मैंने सबको वही नेविगेटिंग की वीडियो जो है सबको बता के मैंने बताया था कि किस तरीके से आपको एक एक पेज में एक एक चीज मिल जाएगी। असाइनमेंट्स की अलग पेज है, आप ऊपर जो साइट पे ऊपर देखेंगे तो आपको मिल जाएगा। और संगीता जी काफी चीजें जो है चैट पे लिख रही हैं, इनको आप फॉलो करते रहिए तो आपको सुविधा हो जाएगी। एक्सक्यूज मी मैम, मैं मनोज साहब बोल रहा हूँ। मोनो, हाँ जी, आपका क्या नाम मनोज है? साहब बोल रहा हूँ। मनोज साहब में मनोज साहब साहब। अच्छा 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 अच्छा, हाँ बोलिए। एक छोटा सा इंक्वायरी है मैम, हम्म, कि जैसे संगीत तो ठीक है, बहुत ऐसे महान माने अच्छे अच्छे लोग हैं जो खुद कुछ सीखने के बाद संगीत मतलब प्रोडक्शन किए हैं, और कुछ ऐसे हैं कि जिनके अंदर ये कला होती है ऑलरेडी जी। और ये चूंकि हम लोग क्लास ले रहे हैं, तो मैंने क्या ये क्लास हमको इंश्योर करवाता है कि आफ्टर कंप्लीटिंग द कोर्स कि मतलब हम लोग के अंदर ये मैंने सीख सकते हैं कि हम कुछ म्यूजिक अपने से मतलब परफॉर्म कर सके या कुछ अंदर से निकाल सके, ऐसा कुछ? देखिए, इस कोर्स के लर्निंग आउटकम में ऐसा कुछ भी क्लेम नहीं किया गया है।
अपने तरफ से हमने ऐसा कुछ क्लेम नहीं किया है। मैं बार बार कह रही हूँ 3 महीने के अंदर किसी को भारतीय संगीत के बारे में बताया नहीं जा सकता, ठीक है? 3 महीने के अंदर आई एम नॉट सेइंग कि ये क्लेम करे या इंश्योर करे, बट सिर्फ ये एक्सपेक्टेशन है कि क्या मतलब इस माने इस कोर्स को करने के ना कोई एक्सपेक्टेशन नहीं हो सकती, क्योंकि देखिए मैं बार बार यही कह रही हूँ कि 3 महीने में क्या आप कोई भाषा सीख के और कहानी लिख सकते हैं? नहीं क्या वो पब्लिश कराने सिर्फ सीखने की बदौलत तो पॉसिबल नहीं, सिर्फ सीखने की बदौलत तो पॉसिबल नहीं है। जो अपने से जिनके अंदर इनहेरिटेंस है म्यूजिक का, जिसके अंदर इनहेरिटेंस है और जिनके अंदर एप्टीट्यूड है, जो एप्टीट्यूड लेके इंसान पैदा होता है, हाँ, वो संगीत जरूर अपने आप कर सकता है। उसके लिए सीखने की जरूरत इसलिए नहीं है कि वो खुद ही संगीत कर सकता है, लेकिन अगर कोई चीज गाइडेड म्यूजिक हो, जैसे इंडियन क्लासिकल म्यूजिक एक विधा है। देखिए बात हर कोई कर लेता है ना, बात करना चाहे तो हिंदी सुनता रहता है, थोड़े दिनों में हिंदी सीख लेता है, हिंदी में बात भी करने लग जाता है। हो सकता है कि वो एक अच्छा कल्पना कर सकता हो, तो उन कल्पना से बना के वो पढ़ा लिखा ना होने के बावजूद भी आपको एक कहानी कह सकता है ना मैम? यस मैम, मैं कहना चाहता हूँ समझ गए ना? यस मैम। तो उसी प्रकार से अगर किसी के अंदर कल्पना शक्ति और संगीत की एप्टीट्यूड लेके कोई जन्मा हो, तो वो संगीत गा सकेगा, अपने आप गा सकेगा, ये कोर्स ना करे तो भी गा सकेगा। नहीं, वो एक्चुअल में मैं ये पूछ रहा था कि मतलब अगर इन्हीं के अंदर ये रुचि है या इनहेरिटेंस है, और क्या ये ये मैंने कोर्स करने के बाद एक गाइडेंस मिल सकती है कि वो उस एक डायरेक्शन दे सके अपने म्यूजिक को? सिर्फ मेरा ये सवाल था। मैं आपको बता ही रही हूँ, आप ही की सवाल का जवाब दे रही हूँ मैं, कि आप इस संगीत को, यहाँ पर जो संगीत आप सीखेंगे, अगर आपके अंदर संगीत की एप्टीट्यूड है तो आप, और आपने कभी नहीं सीखा हो, तो आपको एक राह मिलेगी कि किस तरीके से विधिवत संगीत सीखा जाता है। क्या ये किसी हद तक एक स्टेज हो सकता है कि आदमी अपना संगीत को, मतलब जितने इसमें ग्रुप में हैं, जितने हम लर्नर हैं, मतलब ऐसा कोई सा मौका कि सबको थोड़ा बहुत अपनी संगीत को मतलब आउटपुट करने का मौका मिले, किसके अंदर क्या है, या फिर? हाँ बिल्कुल, आप लोग गाइए। आप लोग यहाँ पर जब हमारी प्रैक्टिकल क्लासेस हुआ करेंगी उसके बाद आप गाइए, और वैसे भी आप अगर गाना चाहते तो गाइए। और हमारा एक फेसबुक भी है, तो मैं इस बार सोच ही रही थी, इससे पहले मेरा फेसबुक मैंने किसी को वो नहीं किया था। अब आप लोग गाएंगे यदि, तो आपकी गाने को आप फोन पे डालिए, और अगर वो उसमें कोई आपत्तिकर चीज नहीं होगी तो उसको मैं फेसबुक में अपलोड कर सकती हूँ। थैंक यू। ठीक है, आज के लिए काफी है। मैडम जो असाइनमेंट दिए हैं उसमें 2 असाइनमेंट है, 0 OBA 001 एंड 002। और समय है आपके पास काफी सारा। हम जब तक मतलब OBA 01 की आज एक क्लास हुई और अगले संडे को एक और क्लास ले लूंगी। क्लास तो नहीं है एक्चुअली, मैं बार बार यही कहना चाह रही हूँ कि दिस इज नॉट क्लास, दिस इज काउंसलिंग क्लास। इफ यू हैव एनी डाउट रिगार्डिंग दैट यू कैन क्लियर, जैसे इन लोगों ने करी। और हम लोगों ने इसी के बहाने में संगीत की थोड़ी थोड़ी जो है बैकग्राउंड को समझने की, डिफरेंट पर्सपेक्टिव से देखने की हम लोगों ने एक कोशिश करी। तो OBA 002 OBA 001 की बुक 2 और बुक 3 में जो भी कुछ है, यदि आप लोगों को उसके बारे में कुछ और भी जानना हो तो हम अगली क्लास में उसको क्लियर कर लेंगे। इस तरीके से OBA 02 की भी एक क्लास करेंगे, क्योंकि उसमें 2 ही किताबें हैं, ज्यादा प्रॉब्लम नहीं है। उसकी भी दो क्लास करेंगे, करके अपनी थ्योरी कंप्लीट, मतलब ये वाली थ्योरी म्यूजिक से परे जो थ्योरी है उसको कंप्लीट कर लेंगे। और फिर OMU 1 बचता है,
तो हम लोग क्लासिक, अब मैं आपको अभी से बोल रही हूँ, पोर्टल पे पड़ा हुआ है एक एक राग, उन रागों की एक एक बंदिशें पकड़ के आप लोग सीखना शुरू कीजिए। पहला राग भैरव ले लीजिए, भैरव राग की जो लक्षण गीत है उसको सीखने की कोशिश कीजिए। मैम ये एक एक क्वेश्चन था इसी से रिलेटेड कि लक्षण गीत, जैसे सरगम गीत तो समझ आया कि जब भी हम जो भी नोट्स को हम प्रोनाउंस करते हैं वो आपका सरगम गीत हुआ। लक्षण गीत का अगर आप बता दें, लक्षण गीत क्या होता है? ये लगता बहुत छोटी सी चीज है, लक्षण गीत कोई खास चीज नहीं है। राग भैरव की जो विशेष बातें होती है जिसके कारण वो राग भैरव है, वो यमन नहीं है। मतलब कि जैसे कि आप संगीता हो, कोई संगीता है और कोई पूनम है, तो पूनम संगीता क्यों नहीं है और संगीता पूनम क्यों नहीं है। इस तरीके से जो आपकी जो विशेषताएं हैं वो आपके नाम से आप पहचाने जाते हो, उस तरीके से वो राग की जो विशेषताएं हैं वो उससे वो राग पहचाना जाता है। तो उनकी विशेषताएं इस गीत में कविता के रूप में पिरो दिया जाता है ताकि आप कभी ना भूलें इसका वादी स्वर ये है, इसका संवादी स्वर ये है, ऐसे करके किस समय में गाया जाता है, कौन से ठाट से इसकी उत्पन्न हुई है ये राग, ये सारी चीजें जो है उसमें बता दी जाती है। तो वो गीत के सहारे आप याद रखते हो उस चीज को, कभी नहीं भूलोगे एक बार अगर गीत आप अच्छे से याद कर लोगे तो इसलिए लक्षण गीत बताई गई है। तो और आप पकड़ भी यही बताता है कि ये हर राग क्यों अलग अलग है? नहीं, पकड़ जो है जैसे कि आप सोच लो कि कोई भी एक गाना आप शुरू करना चाहते हो अचानक से, और आपको एक थोड़ा सा जो है गाने से पहले एक सुर लेना पड़ता है ना जी। उस गाने की ही धुन से मिलती जुलती थोड़ी सी चीज आप आकार में कह लेते हो, गुनगुना लेते हो और फिर आप गाना पकड़ते हो, तो उसी चीज को पकड़ कहते हैं। लेकिन खास करके रागों में जो पकड़ शब्द इस्तेमाल किया गया है वो उस राग के जो हर राग की स्वरावलियों की अपनी अपनी चाल होती है, स्वरों की अपनी अपनी चाल होती है। मतलब सारे गामा पद नि सा 7 स्वर हैं, इन 7 स्वरों से राग बन रहे हैं, तो कई राग बन रहे हैं, तो एक राग से दूसरा राग अलग कैसे हो जाता है? तो क्योंकि उनकी जो स्वरों की जो चाल होती है, स्वरों की जो ग्रुप बनती है वो उस तरीके से अलग। जैसे कि आप सोच लो आपके परिवार में आपके मामा जी का परिवार है, आपके माता जी का परिवार है, आपके पिताजी का एक परिवार है, आपकी ससुराल का एक परिवार है, 4 परिवार हुए। उसमें कॉमन क्या है? कॉमन आप हो, ठीक है ना? तो अगर मैं कहूँ कि भाई तुम तो कॉमन हो और तुम तो सोच लो कि भारद्वाज घराने के आप जो है पैदा हुए हो, तो पर आप अपने भाई से अलग कैसे हुए? आप अपने मामा जी के घर से कैसे अलग हुए? तो अपनी अपनी पहचान हो जाती है ना, क्योंकि आपके ग्रुप्स अलग अलग हो जाते हैं। ठीक है, इस तरीके से स्वर भी सारेगामा पधनिसा ही है, लेकिन वो अपने अपने तरीके से अपनी एक जो है गोष्ठी बना लेती है, तो उन स्वरों की एक अलग अलग ग्रुप बन जाती है और उन ग्रुप से वो राग एक अपना चेहरा बना लेता है। ओके। हर किसी के नाक कान आंख सब कुछ है, लेकिन उसके बावजूद भी चेहरे सबके अलग अलग हैं, क्योंकि थोड़ी थोड़ी एक जगह से दूसरी जगह से हिले हुए हैं। हर किसी का आंख एक जैसा नहीं है, हर किसी के जो है बाल एक जैसे नहीं है, तो एक अलग सूरत बनती है। उसी तरीके से एक राग में सभी कुछ होता है, सारेगामा पधनिसा स्वर होते हैं, उसके बावजूद भी वो अलग हो जाते हैं, क्योंकि वो एक एक अपनी अपनी ग्रुप बना लेते हैं, उसकी चाल अलग बन जाती है, और जैसे स्वर चलते हैं वो एक अपनी धुन का एक कैरेक्टर बन जाता है। वो जब स्वर एक दूसरे के साथ मिलके चलते हैं तो उसकी एक कैरेक्टर बनती है, और उस कैरेक्टर से उस राग का कैरेक्टर बनता है। तो वो कौन से स्वर हैं जो उस राग को कैरेक्टर दे रहा है, उसकी जो मतलब एक धुन बनती है वो है पकड़। तो ये मैंने समझाने के लिए बोला है
डेफिनेशन वहां पर अलग से दी हुई है आपकी OMU, उसमें उस डेफिनेशन को पढ़ के उसी तरीके से जवाब दीजिएगा। लेकिन बात ये है, मतलब समझाने के लिए बात ये है। जी ओके मैम, जैसे आपका ये पोर्टल में ही आपने राग यमन का वीडियो डाला है, उसी की स्वर मालिका और उसी का लक्षण गीत डाला हुआ है, लक्षण गीत। तो इसी तरीके से इसके लिंक के थ्रू जब हम आपके यूट्यूब में जाते हैं तो हमें बाकी राग भी मिलेंगे क्या? हाँ, आप तो यमन के साथ में एक नीचे की तरफ ना एक एरो लगा हुआ है, देखिए दिख नहीं रहा। ये देखिए, मैं हाँ जी। बताती हूँ आपको, शेयर करती हूँ पहले, शेयर एंटायर स्क्रीन। अब मैं भूल जाती हूँ कैसे जाते हैं। अच्छा, ये SLM है ना, ये OMUL 004। मेरा स्क्रीन आपको दिख रहा है? नहीं मैम, नहीं, मुझे नहीं दिख रहा। एक मिनट, किसी को भी नहीं दिख रहा होगा। हाँ, दिख तो रहा है, ये रहा, शेयर नहीं किया। थोड़ा स्लो चल रहा है मेरा कंप्यूटर, शायद मैंने शेयर तो किया है लेकिन हाँ नहीं। अच्छा हाँ, मैं OMUL 004 में राग वृंदावनी सारंग, हाँ, ये सभी भैरव, कुछ है, खमाज, देखिए। हाँ, बिहाग, ये भजन। देखिए, ये जो OMUL 004, इसके आगे जो एरो लगा हुआ है, इसको बड़ा कर देंगे तो देखिए वृंदावनी सारंग, भैरव, खमाज, बिहाग, भजन। और OMUL 4 को खास को खोलेंगे तो यमन मिल जाएगा। यमन, हाँ जी हाँ जी। अभी मिला था आपको दिखने को? मैम स्क्रीन तो शेयर नहीं हुई थी, लेकिन हाँ उसमें पोर्टल में जाके अटक चेक कर गया लिया। है, ये अटक गया है, ये जा ही नहीं रहा। तो खैर, आप सबको मिल गया है ना, देख लिया आप लोगों ने? जी मनोज जी ने अभी तक देखा ही नहीं है। मैम ये किसी भी राग की ताने, उनका मतलब क्या होता है? ताने जो होती है उनका समझ नहीं आया। एक मिनट, मैं जरा इनको बता दूं। क्या दिख रहा है? दिखाना चाह रहे हैं, दिख रहा है अभी? यस मैम। यस मैडम। अच्छा, ये SLM में गए, SLM में जाके SLM में OMUL 004 और यहाँ पर ये एरो है, इसको एक्सपैंड करेंगे तो बाकी सब मिल जाएगा। पहले आप OMUL 004 पे जाइए, तो आपको राग यमन मिलेगा। स्लो चल रही है कंप्यूटर थोड़ा। ये इतना स्लो क्यों चल रहा है? Google Chrome is not responding. आप मेरी बात सुन पा रहे हो आप? यस मैडम। हाँ, यस मैम। ये तो मेरे ख्याल से नेट स्लो चल रहा है या कुछ भी है, अब ये रिस्पॉन्ड ही नहीं कर रहा है। खैर, तान की बातें जो आई ना बेटा, किसने बात करी थी? आरव ने बात करी थी। यस मैम। आरव, हम लोग OMU 001 की जब क्लास करेंगे तो तब हम एक एक करके संगीत के जो शब्द हैं
उनको आपको एक्सप्लेन करेंगे, ठीक है? ओके मैम। क्योंकि इट्स पार्ट ऑफ दैट कोर्स, तो मैं जब उसकी बात करूंगी तो मैं साथ ही साथ आप लोगों को उसके बारे में बता दूंगी। तो हमें 2 और क्लासेस करनी है, OVA01 की और 2 की, और उसके बाद में हम लोग, अगर आप लोगों पे डिपेंड करता है, अगर आपके पास में कोई क्वेश्चन नहीं होगा तो हम डायरेक्ट OVA02 में जा सकते हैं। मैं आप लोगों को क्विजेस दूंगी और विद इन टाइम लिमिट आपको वो क्विज कंप्लीट करके बताना पड़ेगा, तो दैट मीन्स कि आपको समझ में आ रहा है एंड यू आर टेकिंग इंटरेस्ट एंड यू आर ऑल्सो अंडरस्टैंडिंग द थिंग्स, ठीक है? यस मैम। ठीक, तो ओके देन, आज की क्लास यही हम समाप्त कर सकते हैं। यस मैम। यस मैम। ओके देन, सावधानी से रहिए, अपने आप को बचा कर रहिए, बहुत ही खतरनाक समय चल रहा है, सब लोग की सेफ्टी बना के रहिए। आप भी मैम। थैंक यू मैम। जी, थैंक यू। ओके, बाय।